welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of 3rd year. Honest, I'm using PrepLadder since my 2nd year of MBBS for my NEET PG preparation, or I would say next preparation. And to be honest, I got to know that they're introducing something called Snapshot and Rapid Revision 3.0 notes. So I thought, why not to buy it? So before telling you what it has, I'm gonna unbox my RR and Snapshot Revision 3.0 notes and let's see. I'm gonna unbox it fast and just not waste my time in this just recording video of unboxing. But मैंने बहुत सारे videos unbox कर रखे हैं. I'm just very excited to watch what it has. I'm just excited to see what it has because ये basically मुझे बहुत time से चाहिए था and I'm just happy that finally I've received it. So let's see. So after unboxing I have got cool stickers also. Thank you doctors and COVID warriors. I'm gonna definitely put it in my scooty and my car and my bag. So let me tell you why I bought these rapid revision and snapshot notes. Basically what is important, as आप अगर NEET UG भी आपने दिया होगा या फिर NEET PG या फिर next exam देने का आपका प्लान है, तो मेन स्ट्रैटेजी क्या होती है? डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डूइंग सब्जेक्ट और डूइंग रिविजन एज सून एज पॉसिबल एंड रैपिडली, राइट? तो दिस इज द मेन रीजन आई बॉट इट, एंड एज आई एम एविड यूजर ऑफ PrepLadder, I watch PrepLadder videos, so I can't use any other coaching material, right? So this is the reason. Number one thing is rapid revision. So I got basically rapid revision की 4 volume and each volume has different subjects. जैसे इसमें anatomy, physiology, biochemistry, pathology and radiology है. And what it has is main important topics that come in NEET PG exams. मतलब as their faculties have been year old and they know the pattern of the exams and they have read every question in the paper and they know कि ये topic बहुत important है, ये topic थोड़ा कम important है. एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करना होता है? रिविजन ऑफ दैट टॉपिक दैट आर इम्पॉर्टेंट. हम अगर नॉर्मल एग्जाम भी देने जाते हैं तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं दैट हैव हायर चांसेस टू कम. सो दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ फॉर रैपिड रिविजन. वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड मोमेंट पर आपको वो चीज़ ज़रूर रिवाइज करनी चाहिए. दिस रैपिड रिविजन बुक हैज दैट. सो बेसिकली इफ आई शो यू, जैसे अगर करंटली आई एम ट्राइंग टू रैपिड रिविजन माई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बिकॉज वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम. अगर मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट एग्जाम इज बेसिकली मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 3rd year and 4th year in clinical subjects, right? So what my plan is to do rapid revision of 1st and 2nd year का थोड़ा बेस बना लूँ rather than studying it in deeply. So this is one of the main reason I bought it. जैसे it shows only main topics of anatomy that you require to study before just exam, जब आपको rapid revision करना होगा. So this is what I like कि मुझे पता है कि मुझे एंड मोमेंट पे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना. ये बेस्ट पार्ट होता है इस बुक्स का. दे हैव ऑल्सो गिवन द टाइम कि आपको एक सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आपके पास एक टाइम स्लॉट भी होगा कि इतने तक मुझे करना ही करना है. ज़रूरी नहीं आप इससे पहले भी कर सकते हैं, ऐसे 1-2 दिन बाद भी करते हैं. मतलब ऐसे बेस लाइन है ना, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से इन्होंने दे रखा है. एंड अगर आप कहेंगे कि आप यही क्यों मंगाया आपने, इसलिए आप PrepLadder है इसीलिए नहीं. बेसिकली मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं एंड आई गॉट टू नो दैट येस दिस book is meant for last moment studies and this is a great book. So this is why I ordered it. And basically उनका टाइम स्टैम्प भी दे रखा है कि ये कौन से वीडियो कब इन्होंने पढ़ाई है, कौन सा टॉपिक इन्होंने कब पढ़ाया है. तो मेरे लिए ईजी होगा अगर मुझे इस बुक में रैपिड रिविजन में समझ नहीं आ रहा है तो आई कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे मैं जा सकती हूँ. So this is the best part. जैसे when I was studying in first year, I knew the bronchopulmonary segments are very important. उन्होंने भी दे रखा है. तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो हाँ, इन्होंने सही टॉपिक्स दे रखे हैं कि हाँ वो इम्पॉर्टेंट हैं और वही आने हैं पेपर में. सो दैट इज़ वाई वो श्योर कि हाँ मुझे मंगाना है. एंड बीच में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा एज भी दे रखी है कि जैसे इनसेट एग्जाम्स के लिए INCT, जैसे एम्स और जिपमर के लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जस्ट नॉट फॉर NEET PG. जैसे मिडिल ईयर का anatomy is very important. So I feel like everything is there. So
इतनी सी बुक में आपके बेसिकली 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे MBBS के, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही मेन आपका रैंक आती है, राइट। मेन आपका एग्जाम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से आता है, तो आप इजीली 600 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर आपने मेन टॉपिक्स कर लिए। सो दिस इज अबाउट व्हाई आई ऑर्डर्ड रैपिड रिविजन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्नैपशॉट वाली बुक। इसमें क्या है, इन स्नैपशॉट आई रिसीव 3 वॉल्यूम्स। एंड बेसिकली अगर ये स्नैपशॉट मैंने क्यों मंगाया है, बेसिकली मुझे मतलब ये होता है कि मुझे हर जगह, हर एक जगह जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ढूंढने, मुझे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेडली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। जैसे मैंने जब नीट यूजी की भी तैयारी करी थी, तब भी मेरे पास एक जगह लिखा हुआ था सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो इसीलिए स्नैपशॉट क्या है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें अगर वॉल्यूम 1 की बात करूँ, इट हैज़ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजी एंड FMT। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर पूरा एक वॉल्यूम में इन्होंने दे रखा है। तो आपको बेस्ट पार्ट होगा कि आपने एक क्वेश्चन आप उसी टाइम पे आप देख लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, उसी के नीचे आंसर दे रखा है एंड एक्सप्लेनेशन भी उसी के नीचे दे रखी है। तो आपको बुक्स खोलने की या वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। So this is the close view in which you can see all the important topics, the timestamp of the topic in which you can relate to the video, as well as all the important things that you need to learn in that particular topic. Example, process of implantation, diagrams and all the important things that you need to know. As you can see in all the topics, timestamp is definitely given, so you need not to worry कि कौन से videos मुझे कब देखने हैं. And in the snapshot question also, all the timestamp and the questions explanation and the video timestamp is also given, so with the diagram in the book only, so you need not to worry कि मुझे बिना diagram से कुछ question definitely समझ नहीं आते, तो इस snapshot में कोई problem नहीं होने वाली है. So, मेरे हिसाब से most of the medical students start studying at the end of their MBBS, and but I want to have an edge upon everybody, so I have started studying more and more, and I'm trying to complete first and second year faster and better. So this is why I'm ordering this, and this is why I ordered this, and so that I complete my first year and second year questions, cause इतनी तो knowledge है, जब मैं first year second year complete कर चुकी हूँ तो basic aspect तो है, और मैंने rapid revision पढ़ना है, snapshot के questions करने, तो मेरा एक whole base बन जाएगा first और second year का, और third year और second year तो मैं continuously कर ही रही हूँ, cause ये तीन cause third year और fourth year are clinical subjects, तो वो तो आप करते ही रहोगे लगातार, right? And the best part of this snapshot is आपको questions के images भी मिलेंगे आपको, मतलब क्वेश्चंस अगर हैं और इमेज बेस्ड है, ऐसा होता है कि कभी कभी इमेज आते ही नहीं है, पर इन्होंने हर एक क्वेश्चन में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और अगर आंसर भी इमेज बेस्ड हैं, सो बेस्ट पार्ट ये है। और अगर आपको जैसे एज भी है, तो आंसर्स में कुछ टॉपिक का नोट की दे रखा है कि आप एज मिल जाए आपको, जैसे अगर ये टॉपिक का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इन्होंने दे रखा है, तो दिस इज द की आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, इन दी एंड व्हाट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन आपने किए हैं कि नहीं किए, और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, पढ़ सब सकते हैं, बट इन दी एंड आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अच्छे से रिवाइज किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि आपके पास 19 सब्जेक्ट्स है, राइट? आप 19 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए इस पेपर से पहले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन एक स्मार्ट बंदा था जिसने 19 सब्जेक्ट में से ये देखा प्रीवियस ईयर से कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इतने आएंगे तो मेरी रैंक या मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो किसके बेटर हुए, उसके हुए, कुछ उसने 19 सब्जेक्ट, जो पहला बंदा था उसने 19 सब्जेक्ट पढ़े पर हर किसी ग्रॉस नॉलेज नहीं ली, लेकिन उस बंदे ने 10 सब्जेक्ट पे पढ़े, पर जो पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा उसकी अच्छे से नॉलेज लिए। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो दिस इज वाई ये स्ट्रैटेजी से या ये माइंडसेट से मैंने ये चीज़ें ऑर्डर करी हैं, एंड आप भी अगर आपको भी चाहिए तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आपको जिस गोल्ड पैक ऑफ प्रेपलैडर होना चाहिए, एंड आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली मेरे को ये पड़ा है 3500 रुपीज़ में, एंड ये बेसिकली मेरे पास 3 स्नैपशॉट वॉल्यूम्स आई हैं, 4 रैपिड रिविजन वॉल्यूम्स आई हैं, तो बेसिकली 7 बुक्स आई हैं टोटल, और जिससे मेरे हिसाब से मेरे लिए सफिशेंट होंगी, मैं यही कर लूँ वो भी बहुत होगा। दिस इज व्हाट आई हैव माई माइंड सेट। अगर आप भी ये ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज ये वर्थ इट है। बिकॉज अगर अदरवाइज आई वुड नेवर सेड इट, बस कुछ चीज़ें वर्थ इट होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती है। और आपने भी अगर अपनी यूजी दे रहे होंगे तो आपने भी कुछ चीज़ें, आपने भी ये सब किया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस
previous year questions are the most important, I would say, and important topics to be studied. अगर आपके पास लिस्ट हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब से मुझे लिस्ट मिल रही है एंड क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट मनी इन दिस. अगर आपको भी ये बाय करना है तो आई विल डेफिनेटली से, अगर आप भी डाउट में कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आई विल डेफिनेटली से गो फॉर इट. आई होप you like this video. Please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so I feel motivated, because you are my family.